So today we are going to start first effective stress principles, and then we will study about the earth pressure, theory of earth pressures. So let's start with the effective stress. So some of the things you already studied in your physical classes about effective stress. So what do you mean by effective stress? Let's see first. So if you see here, effective stress means basically, in general terms, you are not going to measure effective stress. Physically, you are not able to measure the effective stress, but we know we measure the pore pressure, we know the total stresses, how much total stresses are coming on the soil. So that we can measure, and pore pressure we can measure. And difference of those we are just calculate as effective stress or effective stress principle. Let's see what do you mean by that and how we can calculate effective stress for the different case. So soil mass is a huge collection of small particles. We can say those are soil grains. So basically, with soil particle, we already studied about the soil, which is soil grains. We called them. These soil grains have mass so that exert force as weight downwards on the other particle. So basically, whenever there is a structure, the load is transferred through the grain to grain contact. मीन्स पार्टिकल से पार्टिकल के कांटेक्ट के साथ वो है अपना वेट ट्रांसफर करती है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी स्पेसिमन होता है जो सपोज करो सोयल के 5 मीटर डेप्थ पे, तो उसके ऊपर जो 5 मीटर की डेप्थ है वो जितना वेट ऑफ सोयल है वो सारा का सारा उस सोयल पार्टिकल के ऊपर आ रहा होगा। सिमिलरली जो जिससे नीचे होगा तो वैसा वर्षा जितनी सोयल के ऊपर मास होगा वो सारा का सारा वेट है वो सोयल के उस पार्टिकल के ऊपर आएगा। तो वेट इज ए फोर्स एंड वी रिप्रेजेंट इट इज इनटू न्यूटन किलो न्यूटन, that is the parameter to measure the weight. So these soil grains due to their own weight gets pushed by all the surrounding particles. So जो भी हमारा वेट हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है वो आपका वेट और एयर वेट हम मानते नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वेट ऑफ वाटर एंड द सोइल. तो सोइल इज a three phase system which we have, in which we have water, we have solids, we have air also, but the air weight we are nullify it compared to those which is very less. That's why तो वाटर और जो सोइल का वेट आ रहा है वो किस पे वेट पे ट्रांसफर होगा, दूसरे नेक्स्ट सोइल पार्टिकल्स के ऊपर. इसी तरीके से वाइसा वर्सा हो सभी पार्टिकल्स के ऊपर जो कि अंडर दैट पार्ट अंडर द बीनीथ ऑफ द सोइल में होगा, या ऊपर से आपका स्ट्रक्चरल लोड भी हो सकता है, या आप ऊपर से कोई वेट डाल रहे हो, आपकी गाड़ी खड़ी है, आपका कोई भी मतलब एक्सटर्नल लोड भी आप उस पर पुश डाउन करोगे तो अल्टीमेटली दैट विल आल्सो ट्रांसफर टू द सराउंडिंग सोइल. All the surrounding particle and exact force on each other which is represented by quantity we call at stress. तो सारा का सारा जो ग्रेन के ऊपर वेट आ रहा है वो एक दूसरे को पुश करेगा उस वेट के, उस वजह से अंदर क्या होता है स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाती हैं. और स्ट्रेस हमें पता है द नॉर्मल स्ट्रेस जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिक फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं, विच इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया. एरिया इज ओवर विच एरिया द फोर्स इज अप्लाइड. फाइन. So next, if this is a cross section area here, there the force, normal force is not acting. This is an inclined force and with a different angle. So we have a two kind of stresses component will release over. One is a normal stress, other is tangential stress. Normal stress is stress which is normal force which is acting perpendicular to the area, and tangential stress which the force will act at the parallel to the surface area. So we can say there are two kind of stresses will produce, that is one is normal stress, other is tangential stress. It expresses the internal force that particle of material exert on each other. Obviously stresses क्या होते हैं, these are the internal resisting forces जो कि बॉडी के ऊपर लगते हैं. जब वो बॉडी एक्सपेंड होती है या डिफॉर्म होती है, इन दैट केस बॉडी विल ट्राई टू रिटेन इट्स शेप ड्यू टू देयर इंटरनल फोर्सेस which is your stresses only. So stresses is a vector quantity that we know, just like the force. So we can decompose it into the normal and shear as it is shown in this figure. The stress developed on the surface of force component perpendicular to the area that we called as normal stress. Like this, normal force per unit area means the force which is acting perpendicular to the surface area, the stress component or stress comes out to be normal stress and area. And the stress developed in the surface because of force component tangential or parallel to the surface in the plane, that is your tangential stress or shear stress we call it. Okay.
So when a soil mass is subjected to an external load such as load due to overlaying structure, जो कि अभी मैं बता रहा था, स्ट्रक्चर के सोइल के ऊपर अलग अलग तरीके से लोड आ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ओवरलाइंग स्ट्रक्चर का हो सकता है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस विद इन द सोइल चेंजेस एंड दैट मे इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द सोइल। जिस लोड की वजह से सोइल की स्ट्रक्चरल एबिलिटी है वो चेंज होगी। जैसे कि हमें पता है कंसोलिडेशन होता है, हम जानते हैं, वो चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कंसोलिडेशन की वजह से जो डिफॉर्मेशन आएगी मे अकर सराउंडिंग द सोइल्स। सो इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज द स्ट्रेस विद इन द सोइल। इसीलिए हमें स्ट्रेसेस को पढ़ना जरूरी हो जाता है कि जब ऊपर का लोड कोई भी आएगा, जब हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, कोई ब्रिज बनाएंगे, अल्टीमेटली ऑल द लोड हैज़ बीन ट्रांसफर ऑन द थ्रू द सोइल और विद इन द सोइल इटसेल्फ। जो लोड आएगा वो सारा का सारा लोड अल्टीमेटली सोइल ने कैरी करना है। और इसीलिए उस लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगी, जो इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएट जनरेट होंगी, उनको हमें स्टडी करना पड़ता है। और ये हमें इसीलिए ये जो चीज़ें इफेक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत है। हाउ द बिहेवियर, हाउ द रिस्पॉन्स ऑफ दैट सोइल पार्टिकल्स टू दैट एक्सटर्नल लोड अप्लाइड ओवर द सोइल। जो एक्सटर्नल लोड आपने डाला है उसके बेस के ऊपर, सोइल के ऊपर जो भार आ रहा है, जो वेट आ रहा है, जो पार्टिकल्स का वेट आ रहा है, जो वाटर का वेट आ रहा है, या एक्सटर्नल कोई स्ट्रक्चर का वेट आ रहा है, उसका रिस्पॉन्स सोइल किस तरीके से कर रही है, किस फॉर्म में कर रही है, वो चीज़ें हमें पढ़ना जरूरी है। और इसीलिए हम उसको पढ़ के हम बता सकते हैं कि क्या एबिलिटी है सोइल की, क्या उस लोड के साथ वो कैरी कर स्टेबल रह पाएगी। अगर नहीं रह पाएगी तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट दैट वी रिक्वायर्ड। लाइक डीप फाउंडेशन का फंक्शन कहाँ से निकल के आ रहा है, दिस इज द रीजन बीइंग कि अपर सोइल का जो डाटा है दैट इज नॉट एड इनफ टू टेक केयर ऑफ दैट लोड विच इज कमिंग ऑन द सोइल। इसीलिए हमें उस डीप फाउंडेशन का या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं, या थिकनेस ऑफ फाउंडेशन इंक्रीज कर देते हैं। तो देर आर मेनी मेनी थिंग्स, वो हम जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे तो यू विल लेट नो अबाउट दिस। द टोटल स्ट्रेस ऑन द एलिमेंट इन द सोइल इज इक्वल टू द फोर्स ऑन दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट एलिमेंट। सो जो टोटल स्ट्रेस हमारी निकल के आएगी बेसिकली दैट इज नथिंग बट जितना जो फोर्स आ रहा है डिवाइडेड बाय द एरिया ओवर विच द लोड इज अप्लाइड, over which force is acting or over which the load is applied. Force on that element is the weight of everything above that element. कोई भी एलिमेंट, अगर मैं एक्स एलिमेंट कहीं भी एक डेप्थ 5 मीटर या 10 मीटर पे मान के चल रहा हूँ, उसके ऊपर का जितना भी वेट होगा वो सारा का सारा वेट है वो उस पार्टिकल के ऊपर लगेगा। उस पार्टिकल के ऊपर जितना वेट आएगा पर यूनिट एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल इज नथिंग बट दैट इज योर टोटल स्ट्रेस विच इज कमिंग ऑन द दैट soil particle. We can understand this stress as pressure of overburden. Means pressure of overburden मतलब ऊपर के मटेरियल का वेट, वो स्ट्रक्चर का वेट है, वो गाड़ी का वेट है, वो किसी भी चीज़ का वेट होगा, ऊपर जो उस मटेरियल के है उसको हम बोल देते हैं ओवरबर्डन प्रेशर और ओवर दैट स्ट्रक्चर बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है, इसमें क्या हो सकता है, द टोटल स्ट्रेस इन द सोइल इज शेयर्ड बाय टू कंपोनेंट्स बिकॉज वेट ऑफ एयर वी आर नलिफाइड, we are not going to consider that. That's why there are two parameters remaining which due to that the load or pressure has been taken place on that particle due to the water molecules which is available into the soil grains and the soil solids. Part of stress is shared by the soil grains that are in contact with each other. कुछ जो stresses होंगी, जो ये हमने already जब पोर कंसोलिडेशन की स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको पहले भी बताया है इसके बारे में कि कुछ जो स्ट्रेसेस आएगी सम ऑफ द एक्सटेंट इनिशियली, जैसे ही आप t=0 टाइम होगा तो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर पे लोड आएगा वो किसने कैरी करना है, वो वाटर ने कैरी करना है जो कि अवेलेबल है सोयल मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है। अब जैसे जैसे आपका लोड कंटिन्यूसली उस पर पड़ता रहेगा तो अगर बोथ साइड ड्रेन पॉसिबिलिटी होती है तो ऊपर की लेयर से और नीचे की लेयर से आपका जो पानी है दैट विल एक्सपेल आउट एंड सम ऑफ द वाटर विल एक्सपेल आउट। और जितना पानी बाहर निकला है वो लोड जो कैरी कर रहा था पहले, अब उसका कुछ पोर्शन जितना पानी बाहर गया वो स्ट्रेसेस अब किसके थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी, वो अब सॉलिड ग्रेन्स लेना स्टार्ट कर देंगे। और सिमिलरली जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा, मतलब हम कहने का मतलब कि जैसे ही पानी सारा बाहर निकल जाता है उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है। और सेकेंडरी उसके बाद में स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में हमने पढ़ा हुआ। पार्ट ऑफ स्ट्रेसेस इज शेयर्ड बाय द सोइल ग्रेन्स that are in contact with each other by their grain to grain force transfer.
तो हमें ये चीज़ भी पता है कि पार्टिकल्स जो आपस में कांटेक्ट हैं तो वहाँ उनके अंदर कोहेसिव फोर्स है, और उस कोहेसिव फोर्स की वजह से वो आपस में कांटेक्ट रहते हैं और एक दूसरे के फोर्स को, एक पहला पार्टिकल दूसरे पे ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा तीसरे पे, एंड सो ऑन, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है। और ये सोइल की बात नहीं है, इन एवरी स्ट्रक्चर इफ यू आर कंसिडर ए कॉलम, तो कॉलम के अंदर भी ग्रेन टू ग्रेन ही ट्रांसफर होना है। वो अल्टीमेटली स्टार्टिंग से लोड ऊपर पड़ेगा एंड अल्टीमेटली दैट ग्रेन टू ग्रेन फोर्स विल ट्रांसफर थ्रू द फाउंडेशन एंड फाउंडेशन टू द सोइल, सो ऑन। ठीक है, विच कॉल्ड द इफेक्टिव स्ट्रेस। अब क्या बोल रहे हैं, पार्ट ऑफ स्ट्रेस इज शेयर्ड बाय द सोइल ग्रेन दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर बाय देयर ग्रेन्स और ग्रेन फोर्स ट्रांसफर विच इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रेसेस। अब ये हमें पता नहीं है कितनी होंगी, किस तरीके से आएगी, वी आर नॉट गोइंग टू मेजर दोज वैल्यूज, बट वी कैन कैलकुलेट टोटल स्ट्रेस एंड वी नो द पोर प्रेशर। तो ये दोनों को निकाल लें तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आता है दैट इज नथिंग बट योर इफेक्टिव स्ट्रेसेस ओवर देयर। And a part of the stress is shared by the other component, water present in the voids of the soil structure, this is called pore water pressure। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो हमारी स्ट्रेस सॉलिड ग्रेन्स ने बेसिकली लेनी है उसको हम कह रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। और ये हम नहीं जानते कि कितनी स्ट्रेस है जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली हम बात करूं मैं, कि अगर मैं कहूं कि 100 किलो न्यूटन का लोड आप डाल रहे हो तो यू आर नॉट सपोज टू से दैट कि आउट ऑफ 70 किलो न्यूटन or 70% of that load is taken by solids and 30% is taken by the water. We do not know, or we even can't measure that thing also. But if we can measure the pore water pressure, तो pore water pressure अगर पता लग जाता है और टोटल 100 आ रहा है तो I can minus it and I can say that कि अगर 100 में से 30 अगर वाटर ले रहा है means pore water pressure is 30 over there, तो remaining 70 will be only the effective stress which is transferred by the soil grains. Clear? तो अगर यहाँ पे फिर से यस कुछ कोई पूछ रहा था या वैसे ही यस सर आपने? नहीं सर ठीक था। ओके ओके ओके। तो लेट्स सी कंसीडर ए सेगमेंट हियर, एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर करते हैं, कोई सरफेस एरिया ए, ठीक है, जिसपे लेट अस कंसीडर ए सोइल मास विच इज फुल्ली सैचुरेटेड। तो ऑब्वियसली इट इज ए फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 100% और we can say S is equal to 1. Imagine this soil experience the force P at the some point in soil because of its own weight. मान लिया कि ये सोइल का जो एलिमेंट ए क्रॉस सेक्शन एरिया का है उस पे सोइल का जो ओवरबर्डन प्रेशर आ रहा है वो P है, जो कि लोड वेट अपना ओन वेट आ रहा है। द फोर्स इज रजिस्टर्ड बाय पार्शली द इंटर पार्टिकल्स फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पार्शली बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर अवेलेबल इन पोर्स इज पोर वाटर प्रेशर। हमने कहा कुछ हमारा जैसे कि सॉलिड्स की वजह से लिया जा रहा है, कुछ वेट है वो हमारा पोर वाटर प्रेशर की वजह से और वाटर फोर्स की वजह से यहाँ पे लिया जा रहा है। नाउ टेक एन इमेजिनरी प्लेन विच इज शोन हियर एक्स एक्स at any level in the soil mass which passes through all the points of contact between the soil। मान लिया कि ये एक लाइन एक्स एक्स ली, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है पार्टिकल्स के अंदर, जहाँ जहाँ हमने एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे आगे मैंने शायद ये रहा, दिस इज द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस वाली, ठीक है, बट विच इज नॉट स्ट्रेट, इवन स्ट्रेट निकलेगी भी नहीं क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है दैट वी डू नॉट नो, ठीक है। For the sake of simplicity we just consider this is line is straight and we consider as section xx and contact soil particle lies in the same plane. This plane may look wavy in the small scale as it is will pass through only the contact area of the soil। ये सरफेस बीच में पार्टिकल्स के नहीं निकलेगा, आपस में जो कॉन्टैक्ट का गैप है उसमें से निकल रहा है, बट फॉर ऑल द पार्टिकल पर्पस ऑन द मास स्केल वी कैन कंसिडर परफेक्टली प्लेन, we will try to analyze the force on this plane, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक्चुअली में will not pass through the straight line, but for the sake of simplicity or to for a bigger or larger area we can say that it is might be equal to the straight line, ठीक है, otherwise it will be like that only, ठीक है। The total normal stress on this plane can be given as total normal force acting on the plane given by the plane area of that plane। ऑब्वियसली टोटल स्ट्रेस हमें निकालनी है तो विच इज कमिंग आउट टू बी कितना टोटल लोड आ रहा है और किस एरिया पे लग रहा है, दैट इज नथिंग बट योर टोटल स्ट्रेस। द इंटर पार्टिकल फोर्स आर इन रैंडम
इन मैग्नीट्यूड। जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज है, बीच में जो किसी पार्टिकल के साथ किसी का कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो सकता है, इट्स नॉट कि एवरी पार्टिकल्स के बीच में जो क्वेजी फोर्स होगा वो सेम होगा, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट मे चेंज डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर कॉन्टेक्टेड। जैसे कि अगर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा कॉन्टैक्ट है किसी के पार्टिकल के साथ, तो उसका फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा निकल के आएगा कंपेयर टू द विच इज जस्ट कनेक्टेड। ठीक है, magnitude throughout the soil mass. So on this plane x-axis at every point of contact we can resolve from into normal and tangential force। तो कुछ, क्योंकि ये हमें कॉन्टैक्ट सरफेस पे लग रहा होगा, ये एंगल हमारे कभी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नॉर्मल होंगे, सम विल बी एन सम डिफरेंट एंगल। जैसे कि ये फोर्सेस दिख रहे हैं किसी एंगल पे, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, वन इज नॉर्मल, अदर इज टेंजेंशियल, वन इज perpendicular to the surface, other is the tangential to the surface। ठीक है, तो let's say the normal component of force acting on the particle is capital N। माना इस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल कंपोनेंट निकल के आ रहा है वो हमारा n है, और जितने नॉर्मल फोर्स है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के, मैं कह रहा हूँ n1 आ रहा है, n2 आ रहा है, n3 n4 एंड सो ऑन, सारी की सारी वैल्यू, तो टोटल हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेसेस निकल के आएंगी, नॉर्मल फोर्स निकल के आएगा, विच इज नथिंग बट sum of normal forces n1 plus n2 plus n3 plus n so on। तो sum of n आपके पास क्या आ जाता है, total normal force which is coming out when we are resolving these forces which are acting some angle। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये सारे के सारे अभी हम नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, the water filled in the voids like this you can see there of the soil also exert pressure। अब सो गए सर, मीटिंग छोड़िए कहाँ चला गया सर? हम लोग क्या मजेदार टॉपिक चले जाते हैं सर, हम लोग बच्चे पिच, अगर इन केस नेटवर्क में अगर थोड़ा इशू होता है तो प्लीज maintain silence, some other person may join in the class like principal sir or any other higher authority, so do not create a nuisance। जनरल डिस्कशन नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। स्क्रीन इज विजिबल अगेन? यस सर। okay। So we are talking about the total stress, normal stresses के बारे में। That water filled in the voids of the soil also exert pressures। So these things we already studied कि जो water भी हमारा available होगा voids के अंदर, जो pressure exert करेगा soil grains के ऊपर in the direction as the Pascal law suggests। फाइन, जो जैसा कि हम जानते हैं कि पास्कल लॉ हमें क्या कहते हैं, जो भी हमारे प्रेशर, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ का वाटर होगा एवरी डायरेक्शन के अंदर एट ए पॉइंट, वो क्या होगा, सेम होगा। यस राघव, आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। ग्रीन लाइन है ये हमारा नॉर्मल प्लेन है ना? यस यस, जो रेड लाइंस सर ऊपर जा रही उसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, उस प्लेन एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दीज आर रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स। जो पीछे मैंने कुछ फोर्सेस दिखाए थे ना यहाँ पे, रेड वन, दीज आर द डिफरेंट एंगल्स। तो जब इनके कंपोनेंट आप निकालोगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा, तो ये लाइन जो हमारी है इसके परपेंडिकुलर में जो फोर्स लगेंगे दैट इज द नॉर्मल फोर्स। ओके ठीक है सर, जब प्रेशर से वो तो और नीचे से रिएक्शन आता, हाँ हाँ, तो ये वही रिएक्शन नीचे ये रिएक्शन की बात कर रहे हो ना आप? यू आर टॉकिंग अबाउट दीज कंपोनेंट्स, रेड के अंदर जो शो हो रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट दीज ओनली ना? तो बेसिकली कहने का मतलब है बच्चे, इसको उस तरीके से आप, ये ऊपर से भी है या नीचे से भी है, एवरी डायरेक्शन में पास कर ला तभी वैलिडेट हो रहा है ना। तो कहने का मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड दीज फोर्सेज आर एक्टिंग ओनली अपवर्ड डायरेक्शन। तो मीनिंग इज दैट कि जो किसी भी एंगल पे लग रहे होंगे तो इनके अंदर दो चीजें निकल के आएंगी, जो मैंने सबसे पहले यही चीज समझाई थी आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ये कोई भी लाइन थी, उस लाइन के ऊपर कोई प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने कंसीडर किया, तो ये आपका वो फोर्स लग रहा है उस लाइन के ऊपर,
उस फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट निकल के आएंगे. वन इज द नॉर्मल कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अदर इज टेंजेंशियल कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द सरफेस और टेंजेंशियल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. और on over there is a line along that we are having a different forces, means forces of particles are acting over there, weight of particle plus weight of water, those are acting over there. They are not on a specified at a 90 angle, they will be at different angle that depend upon the contact area. ठीक है, तो उस पे दो कंपोनेंट निकल के आएंगे और उनको हम एक एक करके दोनों को एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे. दीज आर द कंपोनेंट्स here. तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दीज परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. Clear? Yes, sir. Okay. So the water which is filled in the voids of soil also exert pressure. जो कि हमें पता है कि दो ही चीज़ों से हमारे पास हमारे ट्रांसफर जो हो रहा है वो आइदर प्रेशर क्या होगा, वो आपका वाटर लेगा और या सोइल लेगा. तो सिमिलरली जो वाटर अवेलेबल होगा ओवर द दैट मॉलिक्यूल ओवर विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट पर्टिकुलरली, उस लाइन के ऊपर हमारे पास वाटर का भी वेट जो आ रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे पास्कल लॉ सजेस्ट क्या कर रहा है, पास्कल लॉ हमें ये कहता है और ये चीज हमें बताता है कि जिस भी पॉइंट के ऊपर इन एवरी डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर विल रिमेन सेम. ठीक है, Px इज इक्वल टू Py इक्वल टू Pz एट ए सिंगल पॉइंट, नॉट एवरीवेयर but on a single point in every direction pressure will be same. ठीक है, this exerted pressure by the pore water is called the pore water pressure. जो वाटर का प्रेशर आएगा तो इसको हम बोलते हैं pore water pressure, means pressure applied by the water available into the voids of solids or voids in the soil. जो वो सोइल के अंदर वॉइड है उसमें जो पानी भरा हुआ है उस पानी की वजह से प्रेशर लगना उसको बोला जाता है पोर वाटर प्रेशर. पोर मीन्स स्पेस, वाटर मीन्स वाटर, प्रेशर इज अप्लाइड बाय दैट वाटर, इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोर वाटर प्रेशर. क्लियर? दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर आल्सो सपोर्ट्स द स्ट्रेस. क्योंकि ये वाटर जो हमारा अवेलेबल है, हमने ये चीज़ें बारी बारी फिर से वही चीज़ आ रही है कि वेट जो हमारा ऊपर होगा, अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जितना भी वेट आएगा ये इसके अंदर जो वाटर है उसने भी कैरी करना है कुछ, और कुछ आपके सॉलिड मॉलिक्यूल ने करना है. ठीक है, आल्सो सपोर्ट द स्ट्रेस ड्यू टू इट्स वेट ओवरलेइंग द मटेरियल. ठीक है, उसको वेट करेगा. This pore water pressure can be easily measured by inserting a sand pipe or tube inside the soil at a location where we want measure the pressure. तो अब ये pore water pressure हम measure कर सकते हैं कैसे, either you can insert a pipe, अब उस पाइप के अंदर पानी जाएगा, water head measure कर लो, density हमें पता है तो rho g h आप multiply करोगे तो you will get the pressure over there. Rho is the density of water, g is the specific gravity and h is the height over which the water is शोइंग. हाइट जो इतना आएगा और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ रिलेट करके हम वी कैन कैलकुलेट पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, वी कैन कैलकुलेट वाटर प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. दैट यू नो हाउ टू मेजर द प्रेशर, यू स्टडीड इनटू द फ्लूइड मैकेनिक्स. ठीक है, W that is a specific weight is nothing but rho into G into the height of head, basically head of water. ठीक है, in plus your atmospheric pressure, you will get the actual pressure at that point. ठीक है, तो पोर वाटर प्रेशर वी कैन मेजर. तो U इज इक्वल टू क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर जो हमारा U है बेसिकली फोर्स है, U इज द पोर वाटर प्रेशर इनटू AW एरिया ऑफ वॉइड्स. AB लिख लीजिए, W लिख लीजिए, इससे कोई, क्योंकि पानी है वो हमारा कहाँ अवेलेबल है, वॉइड्स के अंदर. तो फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, U इंटू AB और AW. अगर यहाँ AW लिखा हुआ तो नो, डू नॉट गेट कंफ्यूज, AB भी आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ वॉइड्स. ठीक है, where we want to press. Let's say the pore water pressure is U at the plane, so the total force offered by the pore water pressure is U multiplied by the area of voids, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. प्रेशर और स्ट्रेस आर द सेम थिंग because their unit basically the same but there are different obviously. ये चीज़ आप लोगों को बट यहाँ पे रिलेट करने के लिए मैं कह रहा हूँ, प्रेशर इज नथिंग बट force is equal to pressure into the area over which the pressure is exerting. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दैट, बेसिकली दैट कम्स आउट टू बी AW इज द एरिया ऑफ वॉइड. तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रेशर फोर्स बाय द पोर वाटर इज इक्वल टू प्रेशर बाय द पोर वाटर प्रेशर इनटू द एरिया ऑफ वॉइड्स. क्लियर? नाउ by applying equation of equilibrium on the plane xx that we seen in the next slide, just see, ये पीछे हमने देखा था यहाँ पे at this point.
अगर इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, वी कैन राइट द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लेन इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द नॉर्मल इंटर पार्टिकल फोर्स एंड पोर वाटर प्रेशर। तो कहने का मतलब है जो टोटल फोर्स जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, नॉर्मल फोर्स की वजह से आएगा और प्लस आपका पोर वाटर प्रेशर की वजह से आएगा। डिवाइड द इक्वेशन बाय होल क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो P बाय ए, नॉर्मल बाय ए एंड सम ऑफ पोर वाटर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो P बाय ए इज नथिंग बट योर स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस। ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस जिसको हम बात कर रहे हैं, और ये क्या आ जाएगा, म्यू बाय ए, और आपका निकल के आता है अल्टीमेटली। इफ वी नोटिस, और लास्ट चीज को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इफ वी नोटिस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सोयल पार्टिकल्स, लेट्स से AS, area of soil particle का contact is very very small and almost all the area of this plane is covered by the voids। अगर सारा का सारा जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो स्मॉल है और जो जितना हमारा प्लेन का एरिया है वो कवर्ड बाय द voids है। सो इन अवर इक्वेशन एरिया ऑफ AW और AV एंड टोटल एरिया ऑफ प्लेन A कैन बी कंसिडर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, ज्यादातर हम मान के चले अप्रोक्सीमेशन फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। एंड द वैल्यू ऑफ P by A we have already noticed is that total normal stress which is sigma, और टोटल नॉर्मल जो इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आएंगी सम ऑफ नॉर्मल फोर्स बाय A प्लस म्यू, सो वी गेट दिस वन। तो यहाँ पे अगर A की वैल्यू पुट करूँ AW इज इक्वल टू A, तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास क्या बच जाएगा, टोटल स्ट्रेस सम ऑफ नॉर्मल फोर्स कंपोनेंट बाय एरिया प्लस म्यू बाय A। ठीक है, तो बेसिकली A से कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास बचा क्या, म्यू ओनली। तो म्यू इज ओनली क्या है, पोर वाटर प्रेशर, और ये आपका क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस। दिस इज टोटल स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम्स आउट टू बी टोटल स्ट्रेस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर। इन दिस इक्वेशन हाईलाइटेड क्वांटिटी इज कॉल्ड द इफेक्टिव स्ट्रेस। जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो हाईलाइटेड यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है। इफेक्टिव स्ट्रेस है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय सिग्मा प्राइम और डैश और बार। We can say that effective stress is the pressure transmitted through the particle contact with either। तो कहने का मतलब है जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, जो फोर्स, जो स्ट्रेसेस, जो प्रेशर ट्रांसफर होगा थ्रू द पार्टिकल कॉन्टैक्ट एरिया, वो क्या होता है, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, जो कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं। वी कैन मेजर टोटल स्ट्रेस, वी कैन मेजर द पोर वाटर प्रेशर। अगर ये दोनों क्वांटिटी हमें पता लग जाती है तो वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ दोज विल बी इक्वल टू योर इफेक्टिव स्ट्रेस। और कहने का मतलब है जो बचा हुआ फोर्स है और जो स्ट्रेसेस आ रही हैं टोटल स्ट्रेस में से, वो ट्रांसफर होगी कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें दोबारा से थोड़ा सा और उस चीज को, ये आपके कॉन्टैक्ट एरिया, ये पार्टिकल्स है कॉन्टैक्ट एरिया, दीज आर द कॉन्टैक्ट एरिया। बिकॉज ये सारा का सारा अगर वाटर का एरिया है, यहाँ पे आपके जो नॉर्मल कंपोनेंट आ रहे हैं, जो इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहे हैं, दीज ओनली ऑन दीज पॉइंट्स ओनली। एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया इज AS, मीन्स द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पार्टिकल। इट इज मस्ट बी नोटेड दैट effective stress is equal to the total normal force transported at the points of contact divided by the total area of the plane, which includes the area of voids that are occupied the water as well. The effective stress is much smaller than the actual contact stress, which will be the total normal force to that transmitted at point of the contact divided by the actual contact। इस चीज को फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या कह रहे हैं, नोट क्या करना है हमें, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू द टोटल नॉर्मल फोर्स, जो टोटल नॉर्मल फोर्स आ रहा है ट्रांसमिटेड एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर हो रहा है, डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ प्लेन। इस पूरे एरिया का प्लेन का डिवाइड करना है। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, जिसमें आपके एयर वॉइड्स, वो सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है और वो सॉलिड्स का कॉन्टैक्ट भी है। तो voids of that are occupied the water as well, this effective stress is much smaller। इसमें क्या होगा, हमारा एरिया बड़ा होगा, एरिया बड़ा होने की वजह से हमारे पास स्ट्रेस है वो कम निकल के आएंगी, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जितना बड़ा एरिया होता चला जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कम्स आउट टू बी वेरी वेरी लेस। एक्चुअल कॉन्टैक्ट स्ट्रेस विच विल बी the total normal force that is transmitted at the point of contact divided by the actual contact area। तो इस केस में हमारे पास एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया थोड़ा कम होता है तो हमारी स्ट्रेस निकल के ज्यादा आती है, और अगर हम पूरा एरिया कॉन्टैक्ट का मान के चलेंगे तो एक्चुअल स्ट्रेस कम्स आउट टू बी लेस।
So this quantity will be huge, so effective stress has no physical meaning and therefore it cannot be measured directly. इसलिए हम AS निकाल नहीं सकते, इसलिए ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है. बट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल फिजिकल एंड मेजरेबल क्वांटिटी, टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर. हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी रिपीट कर दी है, क्योंकि हमें एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया नहीं पता चलता कि कैसे नॉर्मल फोर्स किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है. बट वी कैन मेजर दीज टू क्वांटिटीज की टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है वो हम निकाल सकते हैं. स्ट्रक्चर का वेट मैं निकाल सकता हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके सारे स्ट्रक्चर का वेट आ जाएगा. फिर किस पॉइंट के ऊपर मैं डेप्थ में मेजर कर रहा हूँ आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस, तो ओवरबर्डन प्रेशर भी कैलकुलेट कर लूंगा कितने एरिया पे, उसका वेट क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ सॉइल मुझे पता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ओवरबर्डन प्रेशर निकाल लूंगा. पोर वाटर प्रेशर मैं पाइप इंसर्ट करके मेजर कर लूंगा, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस. ठीक है, तो ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आता है. अब ये तरजागी सर ने क्या कहा था उसको देखते हैं. बट स्टिल इफेक्टिव स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि नलिफाई है, इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इसको बार बार हम स्टडी करेंगे आगे जब भी डिजाइन ऑफ फाउंडेशन में आते हैं. इसका इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टू यूज देयर, very important and useful for the soil engineers. It has been observed experimentally that it is the effective stress that determines the engineering behavior of the soil. जो इफेक्टिव स्ट्रेस है हमें इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ द सोइल बताती है, लाइक कंप्रेशन एंड शियर स्ट्रेंथ. अब कंप्रेशन एंड शियर स्ट्रेंथ आपको कौन बताएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस बताएगी. मतलब किस तरीके से लोड आपका जो ट्रांसफर हो रहा है कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, नोट द टोटल स्ट्रेस. एक्चुअल हमें सोइल के कॉन्टैक्ट एरिया को, मतलब एक्चुअली कॉन्टैक्ट एरिया की वो चीज़ को स्टडी करना है. तो दैट विल लेट अस नो द सोइल बिहेवियर, हाउ दे आर गोइंग टू बी कंप्रेस, हाउ मच शियर स्ट्रेंथ दे विल प्रोवाइड टू अस. शियर स्ट्रेंथ इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमें एक्चुअली इज दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, बट वी हैव टू स्टडी बिफोर अर्थ प्रेशर. बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी हैव टू मूव, बिकॉज MST 2 तो आपका आई थिंक नहीं हुआ अभी, उसमें रिलेट करेगा, तो सिलेबस हमें उसके साथ ही जाना पड़ेगा. ठीक है, अल्टीमेटली वी हैव टू कवर ऑल द, बट आई विल ट्राई कि इसको भी इंक्लूड किया जाता तो दैट विल बी मच बेटर इफ बिफोर द अर्थ प्रेशर. लेट्स सी, बट कोई बात नहीं, करेंगे उसको भी. We know that total stress at any point within a soil mass can be written as, which is equal to effective stress plus pore water pressure. ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी आपके while we studied consolidation उस टाइम मैंने आपको ये बताया था, और इसके 9 डायग्राम्स भी बताए थे कि कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर आपको इफेक्ट कर रही है और किस तरीके से चेंज हो रही है. From this we can write expression for effective stress is सिग्मा कोमा लिख सकते हो, सिग्मा बार लिख सकते हो. कुछ बुक्स में बार होगा, कहीं डैश लिखा होगा, कहीं सिग्मा इफेक्टिव भी लिखा हो सकता है. सिग्मा माइनस म्यू यू, दैट इज पोर वाटर प्रेशर, सिग्मा इज द टोटल स्ट्रेस. दिस रिलेशन वाज प्रपोज्ड बाय तरजागी in 1936 एंड तरजागी वाज द फादर ऑफ सोइल इंजीनियरिंग. तो उन्होंने हमें 1936 में एक रिलेशन दिया था, विच इज इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू द टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. टोटल स्ट्रेस इज the weight of structure if there is any structure plus overburden pressure plus minus your pore water pressure. water का जो प्रेशर है उसको आपने माइनस करना है, तो आपके पास निकल के आएगी इफेक्टिव स्ट्रेस. Now, as both the total stress and the pore water pressure can actually be measured in the field, we can also calculate the effective stress. दोनों चीज़ों को निकाल सकते हैं, तो हम effective stress भी calculate कर सकते हैं. Let us consider a soil mass and try to find out the effective stress at some point below ground at depth capital H. कोई पूरा saturated soil है, ये पूरी सोइल सैचुरेटेड है, क्योंकि वाटर टेबल आपको यहाँ पे दिखाया हो. इट मीन्स इस पॉइंट से ऊपर वाटर टेबल नहीं है, नीचे पानी पानी है, तो फुली सैचुरेटेड सोइल आपकी. गामा सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सोइल है. इज दैट इस केस में हाइट एच है, इस पॉइंट के ऊपर मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है, और टोटल स्ट्रेस पहले निकालेंगे, फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे यूनिट पोर वाटर प्रेशर. फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड लेवल पे है. ऐसा कंपलसरी नहीं है, एवरी टाइम इट इज नॉट अवेलेबल एट ग्राउंड लेवल, इट विल बी सम डेप्थ, एंड soil is completely saturated. Let the saturated unit weight of soil is gamma saturated, that we know. We know that unit weight of soil is the weight of soil divided by its volume. तो unit weight of soil क्या होता है आपका, weight of soil divided by the volume of soil. Total stress at any point is equal to the weight of everything above this point
टोटल स्ट्रेस क्या होगी, इसके ऊपर जितना भी वेट होगा इंक्लूड्स सोइल प्लस वाटर और ओवरलाइंग कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। इफ एनी डिवाइडेड बाय द एरिया ओवर विच इट्स दिस वेट इज एक्टिंग, तो वेट जो स्ट्रक्चर सोइल का है उसमें हो सकता है पानी हो सकता है, उसके ऊपर आपका कोई यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बना होता है, बिल्डिंग बना होता है, उसका वेट डिवाइड बाय एरिया ओवर विच दिस लोड इज ट्रांसफर, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगी, टोटल स्ट्रेस निकल के आ जाएगी। इट कैन बी इमेजिन सिमिलर टू द प्रेशर विच इज द फोर्स बाय एरिया, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे ये एरिया अगर मैं निकल के थोड़ा सा जूम आउट हम करके देखें तो सपोज करो दी ये एरिया आपका, here let's say area over which the weight is acting as capital A, so weight of the soil above the point of interest will be unit weight of the soil multiply by the volume of the soil। जो वेट आपका निकल के आएगा बेसिकली क्या होता है, गामा क्या होता है आपके पास, गामा इज वेट बाय वॉल्यूम, और हमें निकालना है कि वेट ऑफ सोइल निकालना है, तो गामा इनटू वॉल्यूम, गामा इज द डेंसिटी और स्पेसिफिक आपका वेट आपका सोइल का आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम विच इज द सोइल वेट, और यूनिट जिसको हम बल्क, यहाँ पे अगर बल्क है, बल्क होगा किसके इक्वल होगा, जब आपका अगर फुली सेचुरेटेड है तो आपका गामा सेचुरेटेड आ जाएगा, अगर ड्राई है तो आपका गामा डी आ जाएगा, अगर नेचुरल कंडीशन में मींस इट इज अ पार्शियल सेचुरेटेड स्टेट दैट कुड कंसीडर एज बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय द, इट कैन बी सिंप्लीफाइड टू गामा एच, ठीक है। इन अवर केस वी हैव टेकन यूनिट वेट ऑफ सोइल एज सेचुरेटेड यूनिट वेट, तो गामा क्या निकल के आएगा, गामा सेचुरेटेड बाय एच। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, W बाई ए हमारा था इनिशियल रिलेशन, गामा को हम W को क्या लिख सकते हैं, गामा V बाई ए, V को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट बाई ए से कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा क्या, स्ट्रेस कम्स आउट टू बी गामा सेचुरेटेड इंटू एच, ठीक है। अब ये वाटर टेबल पे डिपेंड कर रहा है कि वो अगर सोइल आपकी मान लो सपोज करो ये वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे ना होती तो कुछ अलग सिनेरियो होता, नीचे के फेज में हम अलग कंसीडर करते, ऊपर के लिए अलग कंसीडर करते, ठीक है। अब ये जैसा कि मैंने बताया कि गोज जो आपका पोर वाटर प्रेशर है वो कैसे मेजर कर सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपको पोर वाटर प्रेशर चाहिए वहाँ पे इस ट्यूब को इंसर्ट किया और जो आपका पानी निकल के आ गया, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा, P एटमोस्फेरिक प्लस दिस पोर वाटर दिस प्रेशर इन दिस ट्यूब, और प्रेशर इन दिस ट्यूब क्या होगा, रो जी एच, रो एच आपकी हाइट है, जी आपकी क्या होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड बेसिकली, ठीक है। Now the pore water pressure at this point in this soil is the pressure due to the weight of water column above it's the height h, so pore water pressure at this point is also the weight of water column divided by the area, ठीक है। So pore water pressure can be written as similar to the total normal stress which is gamma W means the unit weight of water into the h, ठीक है। ये pore water pressure आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से। Therefore the effective stress at this point in the soil can be given as mu means total stress minus u, टोटल स्ट्रेस आपका क्या था, गामा सेचुरेटेड एच माइनस गामा डब्ल्यू एच, गामा सेचुरेटेड में से गामा डब्ल्यू निकाल दो तो क्या निकल के आता है भाई, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू क्या होता है, submerged, यस सबमर्ज्ड, गामा डैश सबमर्ज। तो here gamma W is the unit weight of water, we will find this pore water pressure similar if we insert a tube or stand pipe at this point in soil and observe the rise of water because water in the soil is also atmospheric pressure and water level will be the piezometric level, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम निकाल सकते हैं आपकी इफेक्टिव स्ट्रेसेस। अब इफेक्टिव स्ट्रेस अगर इंक्रीज के इससे एक्सटेंड में होगा तो ये मुझे बताओ, इसके बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है, मैंने आपको बताया था इफेक्टिव स्ट्रेस व्हेन द इफेक्टिव स्ट्रेसेस विल इंक्रीज, कहने का मतलब है पोर वाटर प्रेशर घटेगा तब बढ़ेगा, मतलब एक्सपेल आउट ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस, तो पार्टिकल विज जो वॉइड्स थे वॉइड्स कम होंगे, पानी कहाँ अवेलेबल है, वॉइड्स के अंदर है, वॉइड्स बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी घटेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स घटने का मतलब क्या हुआ है, पार्टिकल विल स्टार्ट कमिंग कॉन्टेक्ट टुगेदर, पास आना स्टार्ट हो जाता है, दे आर कमिंग क्लोजली, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इन दैट केस बढ़ जाता है, ठीक है। To increase the increase in effective stress cause the particles to pack more closely, effective stress बढ़ेगा कब, जब आपके पार्टिकल्स क्लोज होंगे, और ये क्लोज कब होंगे, जब वॉइड्स के जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, सॉलिड्स रिमेन सेम, सॉलिड विल नॉट चेंज, दे आर कांस्टेंट वैल्यूज,
जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, दैट विल ओनली कम इन द पोर वाटर प्रेशर। वो क्यों होगा, आपको ये चीज़ आपको कंसोलिडेशन के टाइम मैंने बताई थी, जैसे जैसे लोड पड़ता रहेगा कंटिन्यूसली, दैट लोड इज ओवर द सोयल, तो उस जो वॉइड के अंदर जो वाटर अवेलेबल है दैट विल स्टार्ट एक्सपेल आउट, और जो वो स्ट्रेसेस पहले पोर वाटर प्रेशर ले रहा था अब वो आपके सॉलिड ग्रेन्स लेना स्टार्ट कर देंगे। और सॉलिड ग्रेन्स लेने का मतलब, अगर पानी था तो पार्टिकल के अंदर अलग अलग तरीके से बीच के अंदर आपका इफ जो कॉन्टैक्ट था पार्टिकल्स का दैट इज लेस। जैसे ही पानी निकलना मीन्स वॉइड स्टार्ट रिड्यूसिंग, तो पार्टिकल क्या होंगे, वो क्लोजली आना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स कॉन्टैक्ट एरिया हैज बीन इंक्रीज, तो उसमें ज़्यादा ट्रांसफर और इफेक्टिव स्ट्रेसेस विल कम्स आउट टू बी मोर इन दैट केस। ठीक है, वॉइड रेशियो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, तो पानी निकलेगा तो बी डब्ल्यू इज ऑब्वियसली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एंड दैट केस सैचुरेशन के केस के अंदर हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स किसके इक्वल होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल होते हैं, तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कम होता चला जाएगा वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इज आल्सो रिड्यूसिंग, एंड दैट लीड्स इन द कंप्रेसिबिलिटी एंड इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल। अब वॉइड घटेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी क्या बढ़ेगी या कम होगी, अगर वॉइड्स कम होते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, Decrease. डिक्रीज, बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी आपकी क्या होती है, जिससे ज़्यादा होगी, कब ज़्यादा होगी, जब वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा, मतलब कंप्रेस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी अगर वॉइड रेशियो ज़्यादा हुए। कंप्रेस कब कम होगी, कंप्रेस होगा कब, जब वॉइड से तभी कंप्रेस होने की चांसेस है, अगर वो वॉइड है ही नहीं, कंपैक्ट है प्रॉपर, जैसे हार्ड रॉक है तो उसको आप दबा नहीं सकते हो, ठीक है, कंप्रेस नहीं कर सकते हो, कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ रॉक, जितने वॉइड ज़्यादा होंगे उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, लाइक क्ले सॉइल। अब वॉइड रेशियो उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो है उसमें ज़्यादा होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंड अगर कंप्रेसिबिलिटी कम होगी तो पार्टिकल कम्स टुगेदर, तो शियर रेजिस्टेंस मींस जो फेलियर होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज अगेंस्ट द शियर फोर्स। ठीक है, in the calculation of active stress we assume that soil is isotropic, that means the unit weight of soil is constant throughout the soil layer, ठीक है, but in the actual field condition soil structure is not homogeneous and non isotropic, contains various defects। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ये हम जानते हैं सब लोग, क्योंकि एक्चुअली सॉइल की क्या कंडीशन है, किस जगह पे क्या है, हो सकता है एक लेयर कॉम्पैक्ट हो, दूसरी ना हो, तीसरी हो, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रॉपर्टी मिलती है, बट फॉर सिंप्लिफिकेशन ऑफ कैलकुलेशंस और थ्योरीज वी जस्ट टेक और कंसीडर द अजम्पशंस। ठीक है, उसी के ब्याह पे हम ये मान के चलते हैं कि सोइल विल बी आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस एंड सेमी इनफाइनाइट एरिया, और ये जो अजम्पशन हमने कंसीडर जनरली करते हैं। सो थोड़ा सा अर्थ प्रेशर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको पहले देखते हैं। अभी तक किसी को इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर। एनीबडी हैव एनी डाउट रिलेटेड टू इफेक्टिव स्ट्रेस? वैसे तो हमने उसके कंसोलिडेशन के टाइम भी पढ़ लिया था मोटा मोटा, बट फिर भी मैंने डिटेलिंग में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सीपेज का एनालिसिस राकेश पूछ रहे थे। राकेश एक्चुअली मैंने वैसे आपको मैसेज कर दिया है, बट एक आपके सिलेबस में जस्ट मेंशन इज सीपेज फोर्सेस ओनली। इफ वी हैव टाइम लेफ्ट टू आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ सिलेबस, तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट, कि सीपेज एनालिसिस भी हम स्टडी करें। अदरवाइज अगर सारी चीज़ों को जैसे टॉपिक के अंदर सीपेज का इंडिविजुअली अगर हम देखें तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, सो अर्थ प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ? फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ मतलब है, हम बात कर रहे हैं सोइल की, सोइल की तरफ से प्रेशर लगाना उसको हम बोलते हैं अर्थ प्रेशर। ठीक है, अर्थ, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सोइल, अर्थ इज नथिंग बट इज अ सोइल प्रेशर, अर्थ प्रेशर, सोइल की तरफ से प्रेशर लगना उसको बोला जाएगा अर्थ प्रेशर। इन द डिजाइनिंग और रिटेनिंग वॉल्स, शीट पाइल्स एंड अदर अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर हम बात करते हैं जो रिटेनिंग, मोस्ट प्रोबेबली आपने रिटेनिंग वॉल्स के बारे में बड़ी बार सुना होगा, ज़्यादातर बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा, बिकॉज सम मैनी ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम JNK और नेपाल इवन, तो नेपाल में भी हिली रीजन से आपने देखा होगा और जम्मू में आपने देखा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों ने। तो रिटेनिंग वॉल को जानते हो आप, रिटेनिंग वॉल इज अ वॉल विच इज
obviously for construction of retain the material behind the wall. और retaining basically material कोई भी हो सकता है. जनरली अगर आप डैम बात करो तो डैम इज इटसेल्फ ए रिटेनिंग वॉल. ठीक है, वो क्या रिटेन करती है? वाटर को रिटेन करती है. यहाँ हम बात कर रहे हैं सोइल को रिटेंशन का. तो जो रिटेनिंग वॉल हमें आ रही है यहाँ होगी, वो क्या अगर रिटेन करेगी? सोइल मटेरियल विच इज बैकफिल बेसिकली कॉल्ड इट. Retaining structure pressure exerted by the soil retained by the structure is also considered. जब आप डिज़ाइन करते हो तो पीछे जो सोइल रिटेन है उसने क्या प्रेशर डालना है आपके मटीरियल स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको भी स्टडी किया जाता है. और उसी चीज़ को स्टडी करने के लिए ये हम अभी कर रहे हैं. एंड दिस प्रेशर exerted by the soil retained by the structure is referred as earth pressure. जो सोइल की तरफ से प्रेशर डाला जाएगा उस रिटेन्ड स्ट्रक्चर के ऊपर, रिटेनिंग वॉल के ऊपर में स्पेसिफिकली, तो उसको हम बोलते हैं अर्थ प्रेशर. सोइल विच इज एज बैकफिल बिहाइंड द वॉल विल एक्सर्ट द प्रेशर ओवर द वॉल. उस प्रेशर को हम बोल देते हैं अर्थ प्रेशर. A retaining wall is a structure which is used to maintain the ground surface at different elevation on either side. इसका काम क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा, अब हिली एरियाज में क्या होता है, एक साइड एलिवेशन कम होते हैं, जिस साइड रोड निकल रही होती है ऊपर क्या होता है, एलिवेशन ज़्यादा होता है. तो बेसिकली डिफरेंस ऑफ एलिवेशन को मेंटेन करने के लिए भी हम रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, क्योंकि पीछे मटेरियल को रिटेन किया जा सकता है. The soil mass is retained by earth retaining structure referred as backfill. जो पीछे soil mass रुका होगा उस अर्थ के रिटेनिंग वॉल के, उस रिटेनिंग वॉल के पीछे जो मटेरियल होता है उसको बोला जाता है बैकफिल. ठीक है. The position of the backfill above the horizontal plane at the top elevation of the wall is termed as surcharge. अब इसका क्या मतलब है? पोजीशन ऑफ बैकफिल अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन. अगर ये रिटेनिंग वॉल है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बिल्कुल ठीक है. अब इसके ऊपर जितना होगा ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर से जिस एंगल पे लग रही होगी सोइल ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल के ऊपर नहीं होती है बिल्कुल. आपने देखा होगा हिल्स आर मच मच मोर हाइट देन द बैकफिल, सॉरी रिटेनिंग वॉल. तो ऊपर का जो मटेरियल होगा प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल, सारी चीज को बोला जाता है सरचार्ज. एंड एंगल मेड बाय द सरचार्ज विद द हॉरिजॉन्टल टर्म्ड एज सरचार्ज एंगल. अभी ये मैं बताता हूँ क्या है. इमेज में देखो, ये है मेरी रिटेनिंग वॉल, दिस इज योर बैकफिल और अर्थ सोइल, जो कि प्रेशर अप्लाई करेगी इस रिटेनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है, इस रिटेनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर डालेगी, उस प्रेशर को बोला है अर्थ प्रेशर. इस सोइल को जो पीछे इसके रिटेन है इसको बोला है बैकफिल. और अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये हमारा सीधा बैकफिल हुआ. और अगर किसी एंगल पे, जैसे कि ऊपर की तरफ चट्टान है आपने या रोक आपकी उसने रुका हुआ है, तो ये जो ऊपर मटेरियल होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर जितने भी किसी भी एंगल पे, इसको बोला जाता है सरचार्ज एंगल. और ये सोइल कहलाती है सरचार्ज. जो एंगल अबव विद द, जो आपकी लाइन ऑफ जो ग्राउंड के साथ बनेगी विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल आपका कहलाता है सरचार्ज एंगल. और ये जो सोइल होती है इसको बोलते हैं सरचार्ज, और ये कहलाती है बैकफिल अप टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है. अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ और हम देखें तो ये आपका कोई एलिमेंट है, उसके ऊपर आपकी ये वेट जो कि लग रहा है सोइल के एलिमेंट के ऊपर, सिग्मा वी वर्टिकल. और इस वर्टिकल की वजह से क्या होगा, फोर्स पड़ेगा तो पार्टिकल क्या होगा, एक्सपेल होना स्टार्ट होते हैं. तो उस वजह से जो पार्टिकल्स है वो इंटरनली फोर्स लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो सिग्मा एच बोला गया है उसको. और जो कि एक हाइट जेड के ऊपर है, और इसका सेक्शन है जो जिसकी थिकनेस है दैट इज डी जेड. अब इसको आगे फर्दर हम देखते हैं. ठीक है. बाय शेयरिंग द पीपीटी बनाना उसमें पॉसिबल नहीं था, तो मैं आई जस्ट ब्रिंग द इमेजेस ओवर देयर. ठीक है. लेट मी जूम इट आउट बिट. ये दिख रहा है आपको? इट इज विजिबल टू एवरीवन? ये दिखाई दे रहा है मुझे? हाँ बहुत थोड़ा बहुत देखो. और जूम कर देता हूँ मैं, बिकॉज ये पीपीटी के अंदर थोड़ा सा ब्लर हो रहा था. अदरवाइज नोट्स कैरी करना आपके लिए डिफिकल्ट होता है. अभी आई थिंक नाउ आर यू एबल टू सी द इमेज? यस सर. तो सिग्मा वी इज द वर्टिकल अर्थ प्रेशर, जो अभी मैंने पीछे इमेज में दिखाया था. सिग्मा एच इज द लेटरल अर्थ प्रेशर. वी इज द वर्टिकल अर्थ प्रेशर, सिग्मा इज द लेटरल अर्थ प्रेशर. तो सिग्मा एच बाय सिग्मा बी मीन्स लेटरल प्रेशर टू द वर्टिकल अर्थ प्रेशर. इट इज कॉल्ड के, विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर. अब ये आएगा कहाँ से, अभी मैं बताता हूँ. K can be greater than 1, it can be equal to 1 और it can be less than 1.
डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वी आर यूजिंग। अब यहाँ पे 3 प्रेशर निकल के आते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इस इमेज से पहले मैं थोड़ा सा आपको जनरल बता देता हूँ। वन इज अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, मीन्स रिजिड बॉडी मूवमेंट ऑफ अर्थ, जो रिटेनिंग वॉल है वो वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, अनयील्डिंग ऑफ रिटेनिंग है वहाँ पे। सोयल मास है वो आपका रिजिड है, अनयील्डिंग ऑफ सोयल मास वहाँ पे है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, रेस्ट के अंदर है, तो उसको बोलते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है, सोयल आपकी क्या है, एक तरीके से ना तो रिटेनिंग वॉल मूव हो रही है ना आपकी सोयल मूव हो रही है, सारा का सारा सिस्टम है वो अनयील्डिंग है। अनयील्डिंग मतलब देयर इज नो चेंज। इफ द वॉल इज रिजिड, रिजिड होने का मतलब देयर इज नो चांस ऑफ मूवमेंट। रिजिड कब होता है, फिक्स होता है, मतलब देयर इज नो चांस ऑफ मूविंग एनीथिंग। तो सोयल मास है वो अनयील्ड होगा तो कंडीशन कहलाती है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। उस कंडीशन में सोयल होगी हमारी रेस्ट में, और जो प्रेशर लगेगा अर्थ की तरफ से वो कहलाता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। दूसरा होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या होगा, सोयल है वो अवे मूव करेगी, सॉरी वॉल है जो अर्थ वॉल है, सपोज करो आपका ये मेरे पास, आर यू एबल टू सी माई इमेज, आपको दिखाई दे रहा होगा? यस सर। ठीक है, ये मेरी वॉल है, ठीक है, ये मेरा पीछे से मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अब इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, आपकी वॉल है वो मूव हो रही है इस तरीके से। तो कहने का मतलब उसी फोर्स के साथ डायरेक्शन की अंदर ही आपका वॉल मूव कर रहा है, इसको बोला जाता है अवे मूवमेंट ऑफ द वॉल फ्रॉम द वॉल, अवे मूवमेंट ऑफ द वॉल फ्रॉम द सोइल बैकफील्ड। ठीक है, जो बैकफील्ड थी पीछे, ये मेरा मटेरियल है सपोज करो यहाँ पे, इसने इसके ऊपर प्रेशर डाला, प्रेशर डालने की वजह से ये सोइल से दूर चली गई, दूर मूव हो रही है, इन दैट केस इसको बोला जाता है मींस अवे मूवमेंट ऑफ वॉल फ्रॉम द बैकफील्ड, इट इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर। इस केस में जो प्रेशर लगेगा वो आएगा कैसे, कितना आएगा वो लेटर अलग चीज है, तो उसको उस टाइम वो जो प्रेशर निकल के आएगा उसको बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब उस दूसरी अगली कंडीशन क्या होती है, सोइल बैकफील्ड वही है बट नाउ वॉल इज मूविंग टुवार्ड्स द बैकफील्ड, मतलब बैकफील्ड की तरफ लग रही है। पहले में क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रही थी सोइल, जो मटेरियल पहले यहाँ पे रिटेन था, सपोज करो ये पूरा मटेरियल बना हुआ है, इसमें क्या हो रही है, वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहा था, वॉल मूव कर रही थी, तो सोइल का जो कुछ पोर्शन है वो गिर के साथ में गिरता है, जैसे अभी बताएंगे आगे, देखता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, आपकी मिनिमम वैल्यू प्रेशर कम निकल के आता है बिल्कुल, क्योंकि वॉल के ऊपर प्रेशर घट जाता है, क्योंकि वो अवे मूव कर रही है बैकफील्ड से। दूसरे केस में क्या होगा, जब पैसिव प्रेशर लग रहा होगा तो वॉल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सोयल बैकफील्ड, और बैकफील्ड के पीछे की तरफ मूव करेगा, मींस टुवर्ड्स द बैकफील्ड मूवमेंट होगी, तो उसको बोला जाता है पैसिव। जब उस टाइम में लगेगा प्रेशर तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड पैसिव प्रेशर। अब उसको हम देखते हैं थोड़ा डिटेलिंग में, अभी आगे आगे चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट देखो पहले, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, इफ द वॉल इज रिजिड, जो कि अभी मैंने बताया था, एंड अनयील्डिंग, द सोइल मास इज रिटेन्ड बाय इट्स, इट इज द स्टेज ऑफ रेस्ट एंड देयरफॉर नो डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। रिजिड होगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अर्थ प्रेशर exerted by the soil mass on the wall in this case is referred as earth pressure at rest। मतलब कोई डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज वॉल इज रिजिड, रिजिड होने की वजह से देयर इज नो यील्डिंग ऑफ रिटेन्ड मटेरियल। रिटेन्ड मटेरियल का मतलब सोइल जो पीछे रुकी है उसका कोई भी डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इस टाइम के अंदर जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है, इस इमेज को हम देखें, अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये मेरी रिटेनिंग वॉल है जिसकी हाइट h है, इसके पीछे ये रिटेनिंग मटेरियल है जो कि सोयल है ऑब्वियसली, और ये हमारा कोई एलिमेंट है जिसपे सिग्मा v लग रहा है वर्टिकल स्ट्रेस, सिग्मा h लग रहा है आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। ठीक है, और जो कि हाइट h पे है। अगर आप प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाओ तो ऑब्वियसली एट द टॉप साइड जीरो होगा, जैसे जैसे आप बॉटम पे जाओगे तो डेप्थ बढ़ती चली जाएगी, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, ये अभी निकल के कहाँ से आया अभी ये बताता हूँ। ठीक है, फॉर द रेस्ट कंडीशन, ऑब्वियसली जब रेस्ट है तो डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब स्ट्रेन इन एच डायरेक्शन, एच डायरेक्शन में वर्टिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें जब ये वॉल अगर मूव करती है तो जो स्ट्रेन निकल के आएगा, डिफॉर्मेशन निकल के आएगी, वो हॉरिजेंटली निकल के आएगी, चेंज आ रहा है जो। ठीक है,
तो स्ट्रेन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पॉइजन्स रेशियो का रिलेशन आपको ध्यान हो, रिलेशन विद द पॉइजन्स रेशियो व्हेन देयर इज ए बाईएक्सियल लोडिंग आर देयर। बाईएक्सियल मतलब दो डायरेक्शन में अगर लोड लग रहे हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ। अगर ट्राई एक्सियल भी था, हमने यूनी एक्सियल भी पढ़ा, बाई एक्सियल भी पढ़ा और ट्राई एक्सियल की कंडीशन भी पढ़ी। बट हियर we have biaxial condition there. Sigma b is the vertical load acting, sigma h is a horizontal load, sigma h is a horizontal stress which is acting on this element here. तो वो क्या होती है हमारी सिग्मा एच, जो कि एक्सियल हम मान के चल रहे हैं कि एक्चुअल लोडिंग ये लग रही है, सिग्मा एच बाई ई माइनस इस कंपोनेंट के साथ, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दिस फोर्स है। तो इसका जो कंपोनेंट करके आएगा वो क्या आएगा, पॉइजन्स इफेक्ट के साथ आएगा, विच इज माइनस म्यू सिग्मा एच बाई ई माइनस म्यू सिग्मा बी बाई ई। ये चीज समझ आई है सबको? किसी को डाउट है? क्योंकि ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो, तो आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। Any doubt related to this, how this term is comes out there? एक एलिमेंट sir. था जिसपे दो स्ट्रेसेस लग रहे थे, सिग्मा एच सिग्मा बी, और एक जेड डायरेक्शन में भी अगर मान कर चलो, तो ये आपकी क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेन निकल के आ गया। ये आपका लेटरल स्ट्रेन के साथ पोजीशन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बाय horizontal stress. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, नॉट द स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं होता है। सिग्मा एच बाय ई क्या होता है भाई, स्ट्रेन होता है ना। स्ट्रेस के साथ निकालोगे तो वो स्ट्रेन क्या होता है हमारा, स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइजन्स रेशियो? पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, दोबारा बताओ, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? Lateral stress by horizontal. Lateral strain by horizontal strain. लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडिनल बोल दिया, लीनियर बोल दिया, मतलब रेशियो ऑफ स्ट्रेन्स ना ओनली। तो यहाँ पे जो पॉइजन्स रेशियो निकल के आएगा वो क्या आएगा, पॉइजन्स रेशियो हमारा आया लेटरल स्ट्रेन, पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लीनियर स्ट्रेन इनटू पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू क्या आ गया, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन मुझे निकालना है, तो लेटरल स्ट्रेन क्या आया, पॉइजन्स रेशियो इनटू लीनियर स्ट्रेन। तो सिग्मा एच बाय क्या है, लीनियर है। इस वजह से, इस फोर्स की वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से दो डायरेक्शन में अगर फोर्स आपका लग रहा है, तो आपके पास 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं। अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उस डायरेक्शन की वजह से जो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, लीनियर और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब उस स्ट्रेन की वजह से, उस फोर्स की वजह से दो डायरेक्शन के अंदर चेंज आएगा पॉइजन्स इफेक्ट की वजह से। वो क्या आएगा, वो होता है पॉइजन्स इफेक्ट, मींस लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इनटू पॉइजन्स रेशियो। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, इस डायरेक्शन में प्राइमरी लग रहा है, तो ये आपके क्या है, लेटरल है। तो पॉइजन्स रेशियो इनटू प्राइमरी स्ट्रेन माइनस पॉइजन्स रेशियो इनटू प्राइमरी स्ट्रेन, तो दो डायरेक्शन में मेन लग रहा है ना, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपके पास सिग्मा एच बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एच बाई ई। यहाँ से सिंप्लीफाई करो, सिग्मा एच 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू म्यू सिग्मा वी, और सिग्मा एच बाई वी आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 बाई म्यू, और म्यू बाय 1 माइनस म्यू आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, और म्यू यहाँ पे क्या है, पॉइजन्स रेशियो है। ई आपका क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। सिग्मा एच है हॉरिजॉन्टल प्रेशर, सिग्मा वी है वर्टिकल प्रेशर। ठीक है, और इन दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा जिसको बोला जाता है के नोट, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। क्लियर? तो ये के नोट निकल गया था। और एट एनी जेड सिग्मा बी क्या होगा, गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू द जेड, यही होता है प्रेशर आपके पास, यूनिट वेट डब्ल्यू एच ही होता है। प्रेशर इज इक्वल टू, अगर फ्लूइड में याद होगा फिर से, अगर रेस्ट पे है तो आपके पास प्रेशर क्या होता है, डब्ल्यू इंटू एच। डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू एच, हाइट ऑफ दैट वाटर, किस साइड पे आप मेजर कर रहे हो। यहाँ पे हमारा स्पेसिमेन किस हाइट पे है, जेड हाइट पे है, और आपका यूनिट वेट ऑफ सोइल लेना है, तो यूनिट वेट ऑफ सोइल क्या आ जाएगा, गामा जेड। और सिग्मा एच जो कि है हमारा पी नोट, अगर मान के चलूँ पी नोट, ठीक है, तो वो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आगे की स्लाइड में देखते हैं। लेट्स सी, विजिबल है ना, किसी को इश्यू तो नहीं है, दिखने में आई थिंक अंडरस्टैंडेबल होगा। ये सब दिख रहा है।
एक्चुअली इसको क्रॉस करके मैं पीपीटी बना सकता था, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आफ्टर कटिंग ब्लर हो जा रही थी, दैट्स व्हाई आई एम वोंट एबल टू ब्रिंग इट इनटू द फॉर्म ऑफ पीपीटी। ये थोड़ा सा कंसर्न है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि पीपीटी में इक्वेशन बनाना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई आई हैव टू दिस कंसर्न के लिए मुझे, चाहे आप जो भी है, बट ये आपको बेयर करना पड़ेगा। it will take a lot of time to make a ppt in the equations if there are lots of equation over there diagram के साथ, तो that is very very difficult। और उसके बाद में अगर इसको कट आउट करके भी पीपीटी में डाला जाता है तो that is going to be blur, that's why I'm not able to do that। बट यहाँ पे आई थिंक दिख रहा है, दिखाई देने में इशू नहीं होगा, तो यू विल अंडरस्टैंड। अगर कुछ थोड़ा जूम आउट और करना है तो और कर सकते हैं इसको। तो पी नोट बाय गामा जेड, ठीक है। अब ये गामा जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, के नोट के। अब ये पी नोट आपका क्या है, सिग्मा एच है, और जो आपका ये है ये सिग्मा वी है, ध्यान रखना, डू नॉट गेट सिग्मा एच इज इक्वल टू पी नोट ओनली, तो उसको साथ में इक्वेट किया हुआ है, नथिंग एल्स। तो यहाँ से पी नोट जो निकल के आएगा दैट इज नथिंग बट के नोट गामा जेड, के नोट गामा जेड, जो कि पीछे दिखाया हुआ था। अगर ए पॉइंट पे देखूं, सबसे टॉप पॉइंट के ऊपर जो डायग्राम हमने लास्ट में बना हुआ था ट्रायंगुलर शेप के ऊपर, मतलब जेड इज इक्वल टू जीरो, तो पी जी नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब टॉप पे कोई प्रेशर नहीं है, जीरो होगा। बी के ऊपर बॉटम पे जेड क्या इतना किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, तो पी नोट क्या आ जाएगा, के नोट गामा इंटू एच, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पी नोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आते हैं कि अगर हम वो प्रेशर लगेगा कहाँ और कितनी वैल्यू लगेगी, हमने अभी ये प्रेशर निकाला है, आप फोर्स निकालना है, वो फोर्स कितना होगा, ऑब्वियसली एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा, आइदर ऑफ द वे यू कैन कैलकुलेट। यहाँ पे अब 2 और 3 तरीके मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो आप उसमें से कोई भी देख सकते हो। अदरवाइज सिंपल तरीका है, ट्रायंगुलर आपका प्रेशर है, ट्रायंगुलर प्रेशर को कैसे कन्वर्ट करते थे एरिया में, एरिया निकाल लो, हाफ बी इंटू एच, बी आपका क्या है, के नोट गामा एच, हाइट है एच, इंटू हाफ करोगे तो आपके पास निकल के आएगा के नोट गामा, इंटू हाइट करना है साथ में, तो ये आपका क्या है, विड्थ है, हाइट आपकी एच है, बाय 2 कर दो तो के नोट गामा एच स्क्वायर बाय 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट फिर भी एक और दो चीजें हैं, पी नोट इनिशियली टॉप पे पी नोट की वैल्यू क्या है, ये आपकी है एवरेज प्रेशर और एवरेज स्ट्रेस, एवरेज प्रेशर और एवरेज स्ट्रेस। मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है, के नोट गामा एच है, इनको एवरेज निकालोगे तो क्या होता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 ही होगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम। अगर मैं कहूँ भी 1 और 2 है आपके पास टोटल, मिनिमम आपका 1 है, मैक्सिमम में 2 है, तो एवरेज कितना निकल के आएगा, 1 + 2/2 ओनली ना, 1.5 निकल के आएगा। तो इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू जीरो है, मैक्सिमम के नोट गामा एच बाय 2 इंटू विड्थ, और एरिया आपका जो मानेंगे, एरिया क्या आ जाएगा, एच इंटू फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, आपका ये क्या है, आपका एवरेज स्ट्रेस है, एवरेज स्ट्रेस 0 प्लस मैक्सिमम बाय 2 इंटू एरिया, एरिया इज हाइट, विड्थ आप मान लो रिटेनिंग वॉल की दैट इज 1, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी के एच इंटू के नोट गामा एच स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब पी नोट अगेन यहाँ पे हाफ के नोट गामा एच, ये आपका क्या होगा, एरिया की फॉर्म में निकाल सकते हो, तीनों चीजों से कर सकते हो, एक ही बात है, एरिया निकाल लो या इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहाँ से करना है, 0 से एच कर दो, पी नोट डी जेड इंटू 1, एरिया आ गया, पी नोट क्या आपका प्रेशर है, डी जेड आपकी क्या है, क्रॉस सेक्शन, आपको जो एलिमेंट दिया था मैंने उसकी विड्थ थिकनेस कितनी दी थी, जी डी जेड थी, विड्थ मान लो 1, एरिया क्या आ जाएगा, डी जेड इंटू 1, इंटीग्रेट करो के नोट गामा जेड इंटू डी जेड, इसको वैल्यू को डी जेड को इंटीग्रेट कर दो, जेड बाय 2 को इंटीग्रेट करोगे आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगा पी नोट इज इक्वल टू के नोट गामा एच बाय 2। अब ये लगेगा कहाँ प्रेशर, अगर ऊपर से मैं बात करूं फ्रॉम दैट इनिशियली स्टार्ट, यहाँ से क्या होगा 2/3 ऑफ एच, और नीचे से क्या होगा h/3, तो ये आपका ट्रायंगुलर आपको पता है सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा, फोर्स जितना निकल के आ रहा है, फोर्स कितना निकल के आ रहा है, के नोट गामा एच स्क्वायर बाय 2, तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ एक्ट करेगी, इट विल एक्ट एट h/3। अब ये दो डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये इसका क्या मतलब है, अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है, मीन्स ऑयल इज फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड होगी, उस केस में ये गामा क्या किसके इक्वल हो जाएगा भाई, व्हेन द सोइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, तो ये गामा किसके इक्वल आ जाएगा, गामा सैचुरेटेड के इक्वल। और यहाँ पे आपके पास पी जो टोटल लगेगा वो कौन कौन सा वेट होगा, सोइल का वेट होगा, प्लस आपका वाटर ऑफ वेट ऑफ प्रेशर बाय द वाटर, वो भी निकालना पड़ेगा, वो कितना होगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, गामा डब्ल्यू इंटू एच,
ठीक है, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच इसको ऐड कर दो, टोटल प्रेशर आपके पास निकल के क्या आएगा, के नोट गामा डैश एच स्क्र बाय 2 प्लस गामा डब्ल्यू एच स्क्र बाय 2। तो ये वैल्यू दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल प्रेशर निकल के आएगा इफ वाटर टेबल इज एट द टॉप सरफेस। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक, यू कैन आस्क क्वेश्चन। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं चार्जर लेके आता हूँ लैपटॉप का। आप तब तक कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क।